ने देखना स्टार्ट किया था, राइट? सो अगर आपके पास कोई भी एक ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस दिया जाता है, तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का यूज करके उस सेंटेंस को हम ट्रांसफर या फिर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये हमने देखा था, राइट? सो जैसे ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किसी को याद है? Yes, sir. So, in input, first we have the input embedding. There we are taking the inputs. So basically, what we can say, any of the sentence that we are taking and that will convert it into tokens. Then input IDs will be created. That will passes to the input and embedding layer. After that, that is for them we are calculating the positional encoding, right? And after that, those vectors, we can say particular word. Let's say in our example, we are learning NLP, right? So we will be passes as a key query key value. And in that, how we were calculating the self-attention mechanism, same process will be followed in the multi-head attention to calculate the references of the that sentence. So if we can say that is a reference of the word or the context. So that's why we are doing the multi-head attention calculating. Then that is before doing query key value, that is passes to the add and norm component. And what we are doing in the add and norm, in the add, basically we are calculating residual connections. In residual connection, we are ग्रेडियंट वैनिशिंग का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे ओवरकम हो रहा है एंड हम आउटपुट को भी यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहे हैं. Then the same output will passes to the feed forward neural network. It will work as how the we used to create a dense vector, so that is passes that layer will be created at same add and normalization will perform. And at other part we were doing the for the output decoding part we are using the output. सो सेम जैसे हमें उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मिल रहा था, हम एनएलपी सीख रहे हैं, उसको 1 by 1 प्रोसेस करेंगे. फर्स्ट हम विल बी प्रोसेस सेम पोजिशनल आउटपुट एम्बेडिंग विल परफॉर्म दैट, देन पोजिशनल इनकोडिंग विल परफॉर्म. दैट विल बी we are doing in the positional encoding also for the output layer. Then the difference is here, instead of multi-head we are using mask multi-head attention because we need to hide those predicted words, otherwise model will not be able to learn from that. So due to that we are doing masking. And same again, add and normalization layer will work there as it was working in the encoder. And after that the difference is in the encoder we used to use as it is key vector value, right? So in this case from encoder we are taking key and value and vector we are using from the output embedding layer, the output that we are getting. Then same that is passes to the add and normalization, then feed forward network will work, and then finally linear and softmax will be work and we'll get the probability for each word. Let's say we have a vector of 1000, then there we'll get the 1000 probabilities. So this way the architecture will work and the components. Yes, great. So this is how you expected to explain each component. So इससे क्या होता है, इवन जब भी कभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो इमेज थी हमने देखा था, उसे जस्ट आपको दिमाग में लाना है. एक बार वो इमेज अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो कोई भी कंपोनेंट एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? क्योंकि वो इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. तो ठीक है. Thank you, sir. तो ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, इसी तरीके से क्या है जो सारी चीजें वर्क हो रही थी. सो हमने कंप्लीटली फ्लो तो आज देखा हुआ है, राइट?
मीन्स अभी तक देखा हुआ है, इनपुट आ रहा है, उनकी आईडी हो रही है, एम्बेडिंग एवरीथिंग इस तरीके से हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो अभी कुछ कंपोनेंट्स है, उनको और थोड़ा डिटेल में देखना जरूरी है। जैसे आपकी पोजिशनल एनकोडिंग हमने देखा, तो पोजिशनल एनकोडिंग में जस्ट हमने ये देखा है कि क्या हो रहा है, हमें पोजीशन की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, इसलिए हम क्या कर रहे थे, जस्ट फर्स्ट पोजीशन के लिए एक वेक्टर क्रिएट किया, ऐसे कंसिडर कर रहे थे। सेकंड पोजीशन के लिए एक वेक्टर ऐसे क्रिएट किया हमने। लेकिन ये जो वेक्टर क्रिएट हो रहे एग्जैक्टली किस तरीके से क्रिएट होते हैं, ये भी हमें देखना होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम बोल रहे हैं मास मल्टी डाटा टेंशन में हमें फ्यूचर की जो इंफॉर्मेशन है वो मास्क करनी है। तो वो जो इंफॉर्मेशन मास्क करनी है वो किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे। एंड उसके बाद हमने एनकोडर डिकोडर के टाइम पे एक और मेथड देखी थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ एनकोडर डिकोडर, टीचर फोर्सिंग। किसी को याद है टीचर फोर्सिंग क्या होते हैं? यस सर, जो पहले का जो ओरिजिनल वेक्टर था, मतलब एम्बेडिंग का पहले का, तो वो एज इट इज इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं, ताकि वो अगर एनएलपी और एमएल है तो वो एनएलपी कंसिडर करे, मतलब ओरिजिनल जो वेक्टर है वो उसको मतलब वो मीनिंग भी हम प्रिजर्व करें। यस, सो उसने अगर रॉन्ग कुछ प्रिडिक्ट कर दिया तो हम क्या चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट टाइम स्टेप पे ये जो रॉन्ग आउटपुट उसने जनरेट किया है वो पास करने की जगह हम क्या करते हैं, जो इसका एक्चुअल आउटपुट है हमारे लेबल डेटा में जो अवेलेबल आउटपुट था वो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रेनिंग को हमारे मॉडल को कन्वर्ज होने में ज्यादा टाइम लगने वाला था या फिर ट्रेनिंग को ज्यादा टाइम लगने वाला था, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। एंड यहाँ पे भी क्या होता है, टीचर फोर्सिंग का यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर में भी टीचर फोर्सिंग का यूज होता है। सो एनकोडर के पार्ट में यूज होगा या डिकोडर के पार्ट में यूज होगा टीचर फोर्सिंग का? डिकोडर के पार्ट में। यस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी क्या होता है, डिकोडर के पार्ट में टीचर फोर्सिंग का यूज होता है। सो ये चीजें हम देखेंगे आज। ये पोजिशनल एनकोडिंग एग्जैक्टली किस तरीके से हमें पता चलेगा कि पोजिशनल एनकोडिंग कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे मास्क कैसे करना है। एंड फिर हम देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर हम देख पा रहे हैं। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर टू पार्ट से बिल्ड हुआ है, राइट। कौन से पार्ट है? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो आपका एनकोडर पार्ट है, राइट, लेफ्ट वाला पार्ट एनकोडर पार्ट। एंड सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है, डिकोडर पार्ट। तो अगर आप इस तरीके से थिंक करते हैं तो क्या हो रहा है, एनकोडर का पार्ट एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहा है, उसका क्या रोल है? मीनिंग समझना, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस था उसका पूरा मीनिंग कैप्चर कर लेगा वो। यस, अंडरस्टैंडिंग करना, राइट। अंडरस्टैंडिंग करना क्या है, उसका मेन पर्पज है। एंड डिकोडर पार्ट का क्या रोल है? जनरेशन का। जनरेशन करना। सो जो हमारा हिंदी का जो भी था उसे ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो एग्जैक्टली यही चीजें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर आवर टास्क सॉल्विंग। सो कंसिडर, जैसे कि हमने देखा था ये जो आर्किटेक्चर बिल्ड हुआ है ओनली किस लिए बिल्ड हुआ है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लेकिन बाकी सारे के सारे टास्क किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे। सो जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा कोई प्रॉब्लम में, हम आप एनकोडर पार्ट यूज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एनकोडर पार्ट किस लिए यूज हो रहा है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड जहां पे कुछ जनरेट करना होगा उस टाइप के टास्क में हम क्या करेंगे, डिकोडर पार्ट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जनरेट हो रहा है। सो ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले अभी हम आज स्टार्ट करते हैं पोजिशनल एनकोडिंग से, किस तरीके से हमें पोजिशनल एनकोडिंग बिल्ड करना है, राइट। तो पोजिशनल एनकोडिंग, या सर एक डाउट था यहाँ पे। यस बोलिए। सर इन इनकोडिंग, ये जो बिफोर वाला जो एरो है ना, मतलब की वैल्यू करने से पहले वैल्यू की वैल्यू, वो जो एक डायरेक्शन पास हो रही है, राइट, एरो एड एंड नॉर्म्स को, तो वहां पे ये नहीं होगा क्या, वो टीचर इन्फोर्सिंग यूज नहीं करेगा क्या? नो नो, टीचर फोर्सिंग कहाँ पे होती है, जहां पे हमने कुछ मिस्टेकली प्रिडिक्ट किया है। यहाँ पे हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, ओके, या गॉट इट। प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट क्रिएटिंग वेक्टर्स, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एंड ये जो आप ये एरो बोल रहे हैं क्या, ये वाला एरो,
यस दिस एरो वो नीचे वाला सर, बिफोर क्रिएटिंग, मतलब जो बिफोर की वैल्यू पेयर के पहले जो पास कर रहे थे ना, हाँ वही वही ये वाला रो, हाँ नॉर्म्स को पास हो रहा है वो। या सो ये बेसिकली ये जो ऐसे नॉन को जा रहा है ये वाला एरो ना, या फिर ये नीचे वाला एरो कौन सा, ये ग्रीन लाइन दिख रही है क्या आपको? नहीं वो नहीं सर, हाँ जो पहले आप हाईलाइट कर रहे थे ना वो, मतलब वो सेम उसी को पास हो रहा है ना, हाँ वो वाला। इस एनकोडिंग से ये वाला। हाँ यस यस यस। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इनपुट एम्बेडिंग है, इनपुट एम्बेडिंग मीन्स क्या, हर एक वर्ड के लिए हमने क्या किया है, एक वेक्टर बिल्ड किया है। वो वेक्टर उसमें हमने क्या किया, पोजिशनल एनकोडिंग ऐड की है। तो वो जो वेक्टर बिल्ड होगा वो कैसे बिल्ड होगा, अगर कोई वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आया है उसके लिए स्लाइटली डिफरेंट एनकोडिंग होगी, एम्बेडिंग होगी। जो थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे आया है उसके लिए स्लाइटली डिफरेंट एनकोडिंग होगी। जस्ट वो क्या है, वो वेक्टर ही है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे टीचर फोर्सिंग नहीं होगी। टीचर फोर्सिंग वहीं पे होती है जहाँ पे हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंड प्रिडिक्ट ओनली हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट, डिकोडर के आउटपुट में। गॉट इट सर। सो ठीक है, सो हम देखते हैं अभी पोजिशनल एनकोडिंग एग्जैक्टली कैसे क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हमारा पोजिशनल एनकोडिंग का क्या पर्पस है, ऑर्डर जो है वो हमें मेंटेन करना है, राइट। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज, इन लैंग्वेज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर कुछ ऑर्डर हमारे मीनिंग चेंज होते हैं। हमने एग्जांपल देखा था, इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया बीट्स इंडिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस में एग्जैक्टली सेम वर्ड्स है, लेकिन इनकी ऑर्डर चेंज है, इसलिए मीनिंग भी क्या है इनका डिफरेंट है। सो हमें लैंग्वेज अगर अंडरस्टैंड करना है, अगर हमने सिर्फ वर्ड का ही मीनिंग कैलकुलेट किया, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मर मैकेनिज्म है अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, अटेंशन हो गया या ये इनपुट एम्बेडिंग हो गई, ओनली वर्ड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, राइट। ये आपको क्या कर रहे हैं, वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए दे रहे, मीनिंग अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, या फिर वर्ड का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है या कौन से रेफरेंसेस है, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड तो हो रही है, लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी क्या है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, राइट। यहाँ पे इनपुट एम्बेडिंग आएगी। अगर हमें पोजिशनल एनकोडिंग को अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मल्टी एड अटेंशन में जाएंगे। मल्टी एड अटेंशन में क्या होता है, हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो प्रीवियसली प्रीवियस इन प्रीवियस आर्किटेक्चर लिखते हैं, इन प्रीवियस आर्किटेक्चर लाइक RNN LSTM, और आप इसमें एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज हम किस तरीके से मेंटेन कर रहे थे, ऑर्डर इज मेंटेन बाय पासिंग इनपुट टाइम स्टेप वाइज, राइट, टाइम स्टेप वाइज। तो हम क्या कर रहे थे, टाइम स्टेप वाइज उसको प्रोसेस कर रहे थे। हम क्या करेंगे, वन वर्ड पास करेंगे, फिर वो प्रोसेस होने के बाद सेकंड वर्ड पास करेंगे। इस तरीके से क्या हो रहा था, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी आपका ऑर्डर है वर्ड की, हम अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। लेकिन दिस प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस सिक्वेंशियल है, एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑलवेज टाइम लेगी। सो यहाँ पे कंसिडर इन ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन करेंगे, फिर लैंग्वेज करेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे, फिर ये, फिर इंपॉर्टेंट। तो इसे करने में क्या टाइम लग सकता है, एंड हमने देखा है अटेंशन मैकेनिज्म जो है वो पैरेलली वर्क कर सकता है। सो अगर हम यह यहाँ पे भी उसी तरीके से वर्क करने लग जाए, टाइम स्टेप वाइज वर्ड जो है पास करने लग जाए, तो इसका जो पैरेलल प्रोसेसिंग की एबिलिटी है उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो अगर हम वन बाय वन वर्ड पास करें तो इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि टाइम स्टेप वाइज अगर पास करेंगे कि इसकी पैरेलल जो प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म देखना होगा जो क्या है,
वो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी करने दे प्लस ऑर्डर भी मेंटेन करने दे। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक न्यू अप्रोच फाइंड आउट किया, एंड वो अप्रोच क्या है बेसिकली पोजिशनल एनकोडिंग। सो हम क्या करते हैं, जिस डायमेंशन का हमारा इनपुट एम्बेडिंग है उसी डायमेंशन का एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, एंड वो वेक्टर क्या होगा, यूनिक होगा फॉर ईच पोजीशन। यहां तक हमने देखा था, राइट। सो वहां पे क्या होता है, पोजिशनल एनकोडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग में क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर हैव, या फिर ऐसे वेक्टर हैव डायमेंशन इक्वल इक्वल टू द इनपुट एम्बेडिंग। इनपुट एम्बेडिंग इनपुट एम्बेडिंग का जो डायमेंशन होगा उस डायमेंशन का हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, एंड ये वेक्टर कैसे होगा, विल बी यूनिक फॉर ईच पोजीशन। Sir, your voice is breaking, sir. तो सबसे ब्रेक हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट मी चेंज नेटवर्क। Yes. Yes, sir. सो हमें क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर बिल्ड करना है जो ईच पोजीशन के लिए यूनिक हो, जिससे हमें पता चले कि फर्स्ट पोजीशन का वेक्टर क्या है, सेकंड पोजीशन का वेक्टर क्या है, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो पोजिशनल एनकोडिंग का वेक्टर है, पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर विल बी एडेड टू इनपुट एम्बेडिंग। इनपुट इनपुट एम्बेडिंग में उसे ऐड करना है। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। यहाँ पे यूनिक होना चाहिए ईच वेक्टर, एंड सेकंड हम इसे ऐड करने वाले। सो कंसिडर, अगर हमने क्या किया है, एक वेक्टर है हमारा, सो किंग का वेक्टर, जो हमने क्वीन का एग्जांपल देखा था, क्वीन के लिए कुछ हमारा ऐसा वेक्टर आ गया है 0.7 अगेन 7, एक वेक्टर आ गया है। ये वेक्टर ने क्रिएट किया किंग के लिए। तो इसमें Sir, अगर हम again कुछ same ऐड, issue. Yes, Sir, again sir. same issue. ये किंग का वेक्टर हमने क्रिएट किया जो हमारे इनपुट एम्बेडिंग से क्रिएट किया है, तो हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, राइट। सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 0.9 हो गया, 0.7673, ये जो भी आया है वो वैल्यू क्या है, कुछ फीचर है उसकी, उसको वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। जो हमने देखा था, ये रॉयल्टी हो सकता है, ये पावर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, किंग की अथॉरिटी, समथिंग ऐसी वैल्यूज है। सो अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं तो ये वैल्यू चेंज होने की चांसेस है, राइट। ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड अगर ये वैल्यू चेंज हो रहे हैं तो ये जो वर्ड बनने वाला है रिजल्टेंट, ये किंग का रहेगा या कुछ और बनने के चांसेस है। तो इस वैल्यू को चेंज कर दिया तो कुछ दूसरा बन जाएगा। या कुछ दूसरा दूसरा ना। बन सकता है, यस कुछ दूसरा बन सकता है। सो ये जो वेक्टर बनेगा अगर इसमें ऐड कर दिया तो वो किंग का ना रह के ऐसे चांसेस है कि कुछ और वर्ड का बन जाए। तो हम ये नहीं चाहते कि उस वर्ड का मीनिंग जो हमने कैलकुलेट किया था वो लॉस्ट हो जाए। तो हमारे पास क्या चैलेंजेस है, ये जो भी वेक्टर होने वाला है वो यूनिक होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग वो वेक्टर इतना भी मीन्स इतना भी बिगड़ नहीं, मीन्स इतना भी चेंजेस नहीं करना चाहिए, अगर ऐड होने के बाद इतने चेंजेस नहीं करने चाहिए कि ये वेक्टर का मीनिंग ही चेंज होना हो जाए, राइट। तो इनकी ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो बहुत ही स्मॉलर होनी चाहिए, इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि इसके मीनिंग में सिग्निफिकेंट चेंजेस ना हो। अगर बहुत थोड़ा फर मीन्स थोड़ा अगर चेंजेस कर दिया हमने, 0.9 की जगह 0.8 कर दिया या फिर 10 कर दिया, तो उतना डिफरेंस नहीं रहेगा कंपेयर टू अगर इसको हमने डायरेक्टली 11 12 ऐसा कुछ कर दिया, राइट। तो हम चाहते हैं बहुत ही स्मॉलर माइनर चेंजेस हो जो इसका मीनिंग भी चेंज ना कर पाए, एंड सेकंड क्या हो, ये जो वेक्टर है सबके लिए यूनिक हो। तो ये हमारी प्री रिक्विजिट है। तो हम ये किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स के क्रिएटर थे उन्होंने इसके लिए मेनली टू थिंग्स फोकस किए थे। सबसे पहले इन्होंने देखा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या 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 देखा उन्होंने, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उन्होंने टू अप्रोचेस किए थे। Approaches है आपका, आप क्या कर सकते हैं,
देखिए हो रहा है। सर तुमच्या माईकचा प्रॉब्लेम वाटतं. तो उनके पास टू अप्रोचेस थे। तो सबसे पहला अप्रोच था, हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, राइट। सो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या करेंगे, इसे लर्न करेंगे। सो जैसे हम प्रीवियसली करते थे, अप्रोचेस हो सकते हैं पोजिशनल एनकोडिंग जो है वो कैलकुलेट करने के लिए। सो सबसे पहला अप्रोच हो सकता है, क्या होगा, हम इसे लर्न कर सकते हैं। जब हमारी ट्रेनिंग हो रही होगी उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं लर्निंग पोजिशनल एनकोडिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सो सिंपली क्या रहेगा, जब आपकी ट्रेनिंग हो रही है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो जैसे आपका एम्बेडिंग लेयर थी, एम्बेडिंग लेयर में क्या हो रहा था, जो आपका एम्बेडिंग है फॉर ईच वर्ड आप लर्न कर रहे थे, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोजिशनल एनकोडिंग भी लर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग के टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्टिमाइज वे में हम लर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा था कि क्या आएगा, अगर हम सारी चीजों के साथ साथ इसे भी लर्न कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लग सकता, ज्यादा लग सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ट्रेनिंग टाइम विल बी मोर। सो ट्रेनिंग टाइम ज्यादा होगा। एंड सेकंड थिंग हो सकती है, कंसिडर हमने क्या किया है, जो हमारा मॉडल ट्रेन किया है 512 वर्ड के ऊपर किया है, राइट। मैक्सिमम हमने 512 लेके किया, लेकिन आपके बाद में जब आपको प्रिडिक्ट करना है उस टाइम पे इससे बिगर वर्ड आ गया या फिर 1000 लेंथ का वर्ड आ गया। तो हमने 512 तक तो पोजिशनल एनकोडिंग लर्न किया है। 512 पोजिशन के लिए क्या होगा, तो 513 514 या फिर 1000 पोजिशन के लिए हमने लर्न किया है क्या एनकोडिंग, लर्न नहीं किया है, राइट। सो जो एनकोडिंग लार्जर देन लर्न है तो उस केस में क्या होगा, उसकी एनकोडिंग हमने लर्न ही नहीं किया, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ यू गेट लेंथ इन प्रिडिक्शन, राइट। सो प्रिडिक्शन के टाइम पे अगर लॉन्गर लेंथ आ रही है तो उस केस में भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने ये एक ट्राई किया, एंड सेकंड जो ट्राई किया था उन्होंने सिनुसॉइडल फंक्शन ट्राई किया था, सिनुसॉइडल फंक्शन। सो सिनुसॉइडल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये आपकी साइन वेव होती है। सो साइन वेव बेसिकली सबको पता है क्या होती है, राइट। सो अगर साइन फंक्शन होता है, साइन ऑफ थीटा, अगर उसे हम हर एक वैल्यू के लिए क्या करें, प्लॉट करें, अगर हमने 1 के लिए किया, 2 के लिए किया, इस तरीके से अगर हमने सारी वैल्यू के लिए प्लॉट किया तो वो क्या करता है, एक वेव की तरह बनता है। तो एंड हम क्या कर सकते हैं, उन वेव का यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग पोजिशनल एनकोडिंग। एंड ये उन्होंने कैसे किया, ये हम क्या करते हैं, सिंपली देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेव बिल्ड करके देखते हैं, एंड वो ये जो वेव है वो किस तरीके से इसको वर्क करेगी ये भी देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंपाई चाहिए, इंपोर्ट एज एनपी, एंड और क्या चाहिए, मैटप्लॉटलिब चाहिए होगा वेव प्लॉट करने के लिए। ये चीजें चाहिए। सो हमें सिंपली क्या करना है, एक साइन वेव प्लॉट करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक आरए बिल्ड करेंगे, आरए एनपी, ए रेंज का 0, ओके नॉट 1000। हम क्या करते हैं, एनीथिंग 1 इंटू क्या करेंगे, एनपी डॉट पाई, एंड वो कहां तक चाहिए, 0.1। सो हम क्या होगा, इस रेंज में, इस रेंज में ये प्लॉट होता जाएगा। एंड हमें क्या करना है, जस्ट y इक्वल टू एक एनपी साइन ऑफ ARR, एंड जस्ट इसे प्लॉट करना है, PLT डॉट प्लॉट। या सो अभी एक साइन वेव जो होती है किस तरीके से होती है ये हमने प्लॉट किया। तो इसको थोड़ा सा, ये बहुत ही स्मॉल हो गया, हमें क्या करना होगा, इसको 1 की जगह 4 रख के देखते हैं। या सो 4 से भी हो रहा है, 5 से आई थिंक बेटर होता है। या सो ये क्या है, आपकी साइन वेव बिल्ड हो चुकी है। सो साइन वेव क्या है,
ये आपको ऑलवेज वैल्यू किसके रेंज में देगी, साइन वेव की वैल्यू क्या होती है -1 to 1 के बीच में देती है, राइट। सो आपको -1 to 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगी। सो यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी -1 है, एंड यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। तो आपका जो एक चीज चाहिए थी आपको, क्या होनी चाहिए ये वैल्यू, उतनी ज्यादा बिगर नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो हमारी वैल्यूज में ज्यादा चेंजेस हो। तो ये वैल्यूज क्या है उतनी ज्यादा बिगर नहीं है, उस वजह से क्या हो सकता है वैल्यूज में उतनी चेंज भी नहीं करेगी, ये हमें पता चला। एंड हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो वेव हमने प्लॉट किया है, तो अगर नीचे आप देखेंगे तो ये हम एज अ पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई वर्ड फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ रहा है तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे कहीं पे होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा समथिंग, यहाँ पे आएंगे हम तो क्या होगी वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आएगी इस वेव की क्या है यहाँ पे 0.5। तो हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट पोजीशन के लिए 0.5, सेकंड पोजीशन के लिए क्या होगा, इसे अगर करके देखते तो मे बी 1 होगा, थर्ड पोजीशन के लिए 0.2 -0.25 होगा, फोर्थ पोजीशन के लिए समथिंग -0.75 होगा, राइट। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं पोजीशन के लिए यूनिक वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ सर, कुछ वैल्यू सेम हो सकते हैं। यस, कुछ वैल्यूज जो है वो सेम हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 के लिए 0.15 आ रहा है, सॉरी 0.55 आ रहा है, उसी तरीके से क्या होगा 7 के लिए भी 0.5 आ सकता है, अगेन यहाँ पे 13 के लिए भी 0.5 आ सकता है। तो वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन इसके अकॉर्डिंगली अगर लिया तो फर्स्ट पोजीशन के लिए आया है आपका 0.5। अगेन सेकंड पोजीशन के लिए क्या है, सेकंड पोजीशन के लिए 1 वैल्यू समथिंग आ रही है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास पोजीशन है सारी पोजीशन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करके लेंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे लिखते हैं 7th पोजीशन की भी वैल्यू 0.5 ही आएगी, 7th पोजीशन ये क्या आएगी 0.5 आ रही है। सो वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। तो एक बात हमें याद रखना है, हमें क्या करना है यहाँ पे ऐसे वैल्यूज क्रिएट नहीं करनी है सिंगल वैल्यू, हमें क्या क्रिएट करना है वेक्टर क्रिएट करना है, राइट। वेक्टर क्रिएट करना है। तो वेक्टर में सिंगल वैल्यू तो नहीं होगी, तो क्या होगा मल्टीपल वैल्यूज होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं साइन वेव ही प्लॉट करेंगे, लेकिन क्या होगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या, ये जो वेव बिल्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं यही लेते हैं एंड क्या करेंगे यहाँ पे अगेन इसकी फ्रीक्वेंसी 5 की जगह 10 कर देते हैं। तो क्या होगा और हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। अभी 0 के लिए अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है, मे बी 1 के लिए देखेंगे तो अभी 0.25 आएगा, 2 के लिए देखेंगे तो 0.5 आएगा। सो यहाँ पे इस वेव के अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है फर्स्ट पोजीशन क्या आ रहा है 0.25 आ रहा है फर्स्ट पोजीशन के लिए 0.25। अगेन सेकंड पोजीशन के लिए क्या आ रहा है समथिंग 0.5 आएगा। तो अभी थोड़ा सा यूनिक हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन के लिए पहले अगर सिर्फ एक सिंगल वेव प्लॉट करते थे तो ये वैल्यू मिल रही थी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये वैल्यू एंड ये वैल्यू को कंबाइन करेंगे। सो अभी फर्स्ट पोजीशन के लिए वेक्टर क्या बनेगा 0.5 0.25 जो हमने क्या किया था सेकंड वेव से लिया था। तो इसी तरीके से हमें कितने वैल्यू चाहिए हर एक वेक्टर में, हर वेक्टर का डायमेंशन कितना होना चाहिए, यस यहाँ पे लिखा था हमने 5 5 and 2. यस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ऐसे 3-4 वेव्स क्या है उन्होंने प्लॉट किया। तो इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूं। सो ये दिख रही है यहाँ पे उन्होंने क्या किया है 4 वेव्स को प्लॉट किया है। जैसे हमने किया था उसी तरीके से 2 वेव्स को किया था, उसी तरीके से 4 वेव्स को प्लॉट किया है। तो यहाँ पे हम 0th पोजीशन के ऊपर या फर्स्ट पोजीशन के ऊपर देखेंगे तो क्या होगा
हर एक वेव की कुछ वैल्यू होगी, इस वेव की कुछ होगी, इस वेव की कुछ होगी, इस वेव की कुछ होगी। तो ये जितने भी वैल्यू आ रहे हैं तो ये क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन का वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? सेम फॉर सेकंड पोजीशन क्या होगा, जो भी ये वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यू अगर हम ऐसे लाइन में जाएंगे, इस वेव की कुछ वैल्यू होगी, इस वेव की कुछ वैल्यू होगी, इस वेव की होगी, इस वेव की होगी। हम क्या करते हैं, जितने भी हमने मल्टीपल वेव्स प्लॉट किए थे, हर एक वेव की जो भी वैल्यू आई है, ये हम वेक्टर का क्या कंसिडर करेंगे, वेक्टर की ईच पोजीशन की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या मिलता है हमें, इस तरीके से अगर हमने 512 वेव्स को प्लॉट करने के तो क्या होता है, आपको यूनिक वेक्टर मिल जाता है। ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट? इसको थोड़ा सा बिगर ही करते हैं, ये बहुत ही स्मॉल लग रहा है। हम सेवन पोजीशन का देखें तो सिक्स यहाँ पे कहीं पे आएगा, सेवंथ का क्या आएगा, -0.25। अभी चेंजेस हो रहे हैं दोनों में, फर्स्ट एंड सेवंथ में, राइट? तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट के लिए 0.5 0.25 आ रहा था, वही ये क्या आ रहा है, -0.25 आ रहा है। तो अभी ये दोनों का वेक्टर यूनिक बन गया, फर्स्ट एंड सेवंथ का, जो कि प्रीवियसली नहीं था। इसी तरीके से अगर हम 512 वैल्यूज ऐड करते हैं तो क्या होता है, ईच वेक्टर आपका यूनिक बन जाएगा। यस, ये वेक्टर यूनिक कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है? सो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इसके लिए इस तरीके से साइन वेव का यूज किया था। एंड नॉट ओनली साइन वेव्स, उन्होंने क्या किया था, कोसाइन वेव्स का भी यूज किया है। तो साइन प्लस कोसाइन दोनों वेव्स का उन्होंने क्या किया है, यूज करके ये जो वेक्टर बिल्ड हुआ है वो वेक्टर बिल्ड किया था। एंड उसके लिए फॉर्मूला भी है, एक फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला रहेगा। सो ये क्या है, आपका पोजिशनल एनकोडिंग का फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम देखते हैं। सो कंसिडर, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आपको फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन एक वेक्टर बिल्ड करना है, राइट? एंड वेक्टर में कितने वैल्यूज होने चाहिए, 512 यस 512 वैल्यूज, 512 वैल्यूज होनी चाहिए इस वेक्टर में। या फिर जो आपका सेकंड पोजीशन है उसके लिए भी 512 वैल्यूज होनी चाहिए। जितने भी आप पोजीशन के लिए वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, ईच वेक्टर में कितने होने चाहिए, 512 वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये 512 वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट करना है फॉर ईच पोजीशन, ये क्या है यहाँ पे बताया गया है। सो ये फॉर्मूला क्या है, पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो पीई क्या स्टैंड करता है, पोजिशनल एनकोडिंग ऑफ, एंड ये यहाँ पे क्या है, पीओएस मीन्स क्या है, हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं पहले। सो हमें क्या करना है, ईच पोजीशन के लिए यूनिक वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, पोजिशनल, यहाँ पे पीओएस क्या स्टैंड कर रहा है, पोजीशन इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस, राइट? सीक्वेंस में पोजीशन, सो मीन्स क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन हो सकती है, सेकंड पोजीशन हो सकती है, जो वर्ड है आपका उस वर्ड की पोजीशन। एंड ये जो आई है वो आई क्या स्टैंड कर रहा है, आई स्टैंड कर रहा है डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर। सो ये क्या होगा, डायमेंशन इंडेक्स ऑफ ईच पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर, ईच पोजिशनल एनकोडिंग का वेक्टर का डायमेंशन। सो क्या होगा यहाँ पे, पीओएस 1 होगा, 1 के लिए कितने ऐसे आई होंगे फॉर ईच पोजिशन, हाउ मेनी आईज, 512, राइट? सो ये आई क्या स्टैंड कर रहा है, सो इस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर में 512 जो डायमेंशन रहेंगे, तो 512 की ईच वैल्यू रहेगी 1 वैल्यू 2 वैल्यू। तो ये आई क्या स्टैंड कर रहा है, ये 512 वैल्यू स्टैंड कर रहा है। ये समझ में आ रहा है, ये पीओएस एंड आई में क्या डिफरेंस है? Yes. या एंड यहाँ पे क्या है, सो ये सिंपली हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं। सो आप, हमारा जो सेंटेंस था, कौन सा सेंटेंस था, वी आर लर्निंग एनएलपी, ये सेंटेंस है। इसमें क्या होगा,
वी की पोजीशन अगर हम लेते तो क्या आएगी, वी 1 आएगा, आर आपका 2 आएगा, ये आपकी क्या है, पोजीशन है इन अ सीक्वेंस, राइट। वी फर्स्ट पोजीशन, ये सबसे पोजीशन पे है। तो यहाँ पे क्या 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 होगा, सिंपली ये जो आपका वी है, वी के लिए 512 आई होंगे, आर के लिए 512 आई होंगे, राइट। इस तरीके से ये बिल्ड होगा। एंड यहाँ पे एक और थिंग है, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ डी ऑफ मॉडल। सो डी ऑफ मॉडल क्या हो सकता है, सिंपली डायमेंशन कितने होंगे। सो यहाँ पे कितने डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग वेक्टर एंड यहाँ पे कितने, मीन्स हमारे इस केस में हियर 512, हियर हम लिखते हैं 512, राइट। 512 डायमेंशन का ये वेक्टर है। तो हमें क्या करना है, इस आई के लिए किस तरीके से, सिर्फ अभी हम देखेंगे वी के लिए किस तरीके से हम पोजिशनल एनकोडिंग बिल्ड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी के लिए हमें बिल्ड करना है एक पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर। इसमें कितने ये होंगे, 512 नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एंड एक और चीज आपको याद रखना, तो सिंपली हम क्या, सॉरी, जस्ट सिंपली क्या करना है, जो आपका आई है, आई मीन्स क्या, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरनेट का क्या इशू हो रहा है आज पे। आई क्या स्टैंड कर रहा है, वी में आई क्या स्टैंड कर रहा है, वी वेक्टर में क्या होगा, ये 512 डायमेंशन का वेक्टर बनने वाला है, राइट। सो 1 समथिंग इस ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसे कितने वेक्टर होंगे, 512 डायमेंशन तक वेक्टर होगा। तो ये जो ईच वैल्यू है, ये क्या स्टैंड करती है, आई स्टैंड करती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी के लिए ये जो 512 नंबर्स है, वो नंबर्स क्या होंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यूजिंग दिस वेव्स। तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, फॉर ऑड इंडेक्स ऑफ आई क्या होता है, ऑड इंडेक्स के लिए हम कोसाइन वेव का यूज करते हैं। एंड फॉर जो E1 है, E1 ऑफ आई, उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन वेव का यूज करेंगे। सो ऑड मीन्स क्या, फर्स्ट पोजीशन है। सो ये फर्स्ट ऑड है या इवन है, Odd. ऑड है। तो इस पोजीशन का जो भी ये यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोसाइन वेव का फॉर्मूला। सो कोसाइन वेव का क्या फॉर्मूला है, ये साइन ऑफ पीओएस। पीओएस मीन्स क्या, कौन सी पोजीशन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पोजीशन क्या है अभी वी की इस कंडीशन में, यहाँ पे वी का पीओएस क्या है, फर्स्ट है, राइट। यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 10,000। सो यहाँ पे लेते हैं 10,000। 10,000 का पावर, कितना पावर होना चाहिए, 2 ऑफ आई। आई क्या है हमारे पास, 2 इंटू, इस पोजीशन के लिए कैलकुलेट कर रहे तो आई इज 1, राइट, एंड डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ मॉडल दैट इज 512। अभी सेकंड पोजीशन के लिए कैलकुलेट करना है, मीन्स वी के ही ये फर्स्ट वेक्टर हमारा बिल्ड हो गया, अभी सेकंड पोजीशन के लिए कैलकुलेट करना है। तो सेम क्या करेंगे हम, पोजीशन क्या है वी की, 1 डिवाइडेड बाय 10,000 टू द पावर क्या होगा, 2 इंटू पोजीशन क्या है 2 डिवाइडेड बाय 512। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक वर्ड के हर एक ये जो डायमेंशन की ये वैल्यूज है, ये हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है ये, या बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो गया आज, थोड़ा थोड़ा पार्ट। सर तो वो बहुत ज्यादा ही ब्रेक हो गया सर। आई हो वाला गया जो सर बहुत ज्यादा। होता है सर, क्या क्या, विच वन, सॉरी, पोजीशन पीओएस एंड आई की वैल्यू सेकंड है ना, वो में कंफ्यूज हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, सो सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए पीओएस क्या स्टैंड कर रहा है। पीओएस मीन्स क्या, जिस वर्ड के लिए हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं उस वर्ड का सीक्वेंस में क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे वी का क्या पोजीशन है, पीओएस क्या आएगा, वी के लिए 1 आएगा, आर के लिए 2 आएगा, लर्निंग के लिए 3 आएगा, राइट। ये पीओएस क्लियर है अभी। एंड आई क्या है, आई मीन्स आप वी के लिए एक वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, आर के लिए एक कर रहे हैं, हर एक पोजीशन के लिए एक वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो हर एक वर्ड का जो वेक्टर होने वाला है वो कितने डायमेंशन का है, 512 डायमेंशन का है, राइट। सो वी के जो 512 डायमेंशन में इंडेक्स होंगे
वही का 512 डायमेंशन का जो वेक्टर है उसमें 512 वैल्यूज है, तो ये कौन से इंडेक्स पे है? फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, ऐसे 512 इंडेक्स है। तो आई क्या स्टैंड कर रहा है? जो आपका ये वेक्टर है ईच वर्ड का, उसमें इंडेक्स क्या है? तो यहाँ पे ये क्या इंडेक्स हो गया? फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट इंडेक्स। ये क्या है? फर्स्ट वर्ड का 512 इंडेक्स। सो ऐसे हम एनएलपी के लिए कैलकुलेट करेंगे। एनएलपी के लिए हमारा एक वेक्टर होगा, सो हम ऐसे कुछ वैल्यूज लेते हैं। सो ऐसे ही क्या लेंगे? 512। सो ये 3 क्या स्टैंड कर रहा है? फोर्थ पीओएस का 1 आई, फर्स्ट आई। समझ में आ रहा है अभी? पीओएस मीन्स क्या? सीक्वेंस में देख रहे हैं हम, एंड आई क्या है? ईच इंडिविजुअल, इसका वही का जो वेक्टर होगा उसके अंदर देख रहे हैं। सर इंडेक्स 0। हेलो, सभी का एनएलपी का 3 रख रहे हैं। नो नो नो, ये दिस वन इज वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर, एनएलपी का कंप्लीट वेक्टर है। ये वेक्टर है, 512 डायमेंशन का वेक्टर है। ये भी क्या है? 512 डायमेंशन का वेक्टर है। हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए एक वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, इसके लिए एक वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, हर एक वर्ड के लिए एक एक वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं। 0 से क्यों नहीं है? ठीक है, ये पोजिशनल एनकोडिंग क्लियर है। अभी हम स्टॉप ही करते हैं क्योंकि इंटरनेट बहुत इश्यू दे रहा है आज। ये क्लियर है? मींस पोजिशनल एनकोडिंग जस्ट क्या कर रहे हैं हम? हमें एक हर किसी की एक पोजीशन के लिए एक यूनिक वेक्टर बिल्ड करना है। तो यूनिक वेक्टर बिल्ड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो आपकी साइन वेव है उनका सिंपली यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? ऐसे मल्टीपल वेव्स प्लॉट करते हैं, एंड हर एक पोजीशन के ऊपर, अगर यहाँ पे 0 है, फर्स्ट है, थर्ड है, ऐसे क्या होंगे? 512 वैल्यूज होंगे, राइट? साइन वेव हम प्लॉट कर सकते हैं 512 वैल्यूज के लिए। सिंपली हमें क्या करना है? उन 512 वैल्यूज के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो हमें कंसिडर करना है फॉर पोजीशन। तो ये 0th पोजीशन है तो क्या होगा? 0 होगा। 1 पोजीशन के लिए 50 होगा। ऐसे जब हम 512 वैल्यूज प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में दिया गया है, उन्होंने क्या किया है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है? इस ऐसे 5 वेव है, राइट? हम सिर्फ आई थिंक 4 वेव्स उन्होंने क्या किया है? प्लॉट किया है। तो कंसिडर हमें यहाँ पे 4 डायमेंशन का वेक्टर बिल्ड करना था, उसलिए हमने क्या किया? 4 वेव जो है वो प्लॉट की है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन अगर हम यहाँ पे देख ले, तो फर्स्ट पोजीशन हर एक वर्ड के लिए डिफरेंट रहेगी, हर एक वेव की वैल्यू, राइट? तो फर्स्ट पोजीशन का वेक्टर क्या होगा? हम फर्स्ट पोजीशन से यहाँ से जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ये फर्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या होगा? ये वैल्यू होगी। सो हर एक ईच वेव का जो वैल्यू होगा वो हम क्या करते हैं? लेते हैं। ये होगा 0th पोजीशन के लिए, ये 3rd पोजीशन के लिए क्या होगा? ये वाली वैल्यूज का वेक्टर बिल्ड होगा। सो वेक्टर में फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू। वेक्टर में सेकंड वैल्यू इस वेव की वैल्यू, थर्ड वैल्यू ये, फोर्थ की ये वैल्यू। इस तरीके से क्या होता है? 4 डायमेंशन वेक्टर क्रिएट हो रहा है यूजिंग 4 वेव्स। सो उसी तरीके से अगर 5 डायमेंशन का वेक्टर बिल्ड करना है तो हम क्या करेंगे? 512 वेव्स प्लॉट करेंगे। सिंपली ये समझ में आ रहा है? 512 डायमेंशन के लिए 512 वेव्स लगेंगे क्या? करेक्ट। 512 डायमेंशन के लिए 512 हम प्लॉट करेंगे। 512 क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग तो एक वेव से भी काम चला सकते थे, बस उसको यूनिक करने के लिए हम लोग ने 2 वेव किए थे। सो यूनिक तो अपने को 2 वेव से भी मिल जाता। देन 512 मींस क्या होता है? कंसीडर 2 वेव से यूनिक यहाँ पे ये 2 वैल्यू मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो क्या हो? सिमिलर वैल्यूज आ जाए, राइट? तो इसलिए हमने क्या किया? जब तक 512 लेंथ के लिए अगर हमें कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने जस्ट 7th लेंथ तक देखा है, तो 7th लेंथ तक में भी नहीं आ रहा है, या 7th लेंथ तक भी हो सकता है। सो ऐसे हम 512 लेंथ तक करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे क्या आ जाएगा? यूनिक नहीं रहेगा, वो मीन्स रिपीटेड हो सकता है। तो अगर हम 512 वैल्यूज लेते हैं तो क्या होगा? हर पोजीशन के लिए एक यूनिक वेक्टर बिल्ड हो जाएगा, एंड हमारा यही पर्पज है, हर पोजीशन के लिए एक यूनिक वेक्टर बिल्ड हो। वैल्यूज तो चेंज हो जाएंगे, मतलब अगर थोड़ी सी भी वैल्यूज अगर चेंज हुई तो वो नया वर्ड बन जाएगा। यस, सो उसके लिए हमने ये ध्यान रखा है कि जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, जैसे हमने एक किंग के लिए देखा था, राइट? किंग का वेक्टर है, इसमें हम
इतना चेंज करना चाहते हैं, बहुत ही स्मॉलर माइनर चेंज करेंगे, जिससे क्या हो, वैल्यू चेंज हो लेकिन वो अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे ज्यादा दूर नहीं जाती, जस्ट स्लाइटली मूव करती है। सर लेकिन तो क्या होगा? तो अगर एम्परर भी बन गया कि जो दोनों बहुत क्लोज होंगे तो चेंज तो हो गया फिर वो। हाँ, या मिस चेंज कैसे हो रहा है, पोजीशन के लिए चेंज हो रहा है। तो मैं 1 मिनट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सिंपली हम क्या कर रहे थे, तो कंसिडर ये हमने क्या किया, एक किंग का वेक्टर है आपका, ये किंग का वेक्टर है, किंग, एंड ये वैल्यू है। सो हम क्या चाहते हैं, ये किंग का वेक्टर मूव हो, सिर्फ कितना मूव हो, वो यहां तक आ जाए या यहां तक आ जाए। सो ये जो यहाँ इस पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किंग अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो क्या होगा, मे बी वो यहां तक आ सकता है, सेकंड पोजीशन के लिए यहां तक आएगा, थर्ड पोजीशन के लिए यहां तक, फोर्थ पोजीशन के लिए यहां तक। लेकिन ये जो मूव हो रहा है उसकी वजह से ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे। अगर चेंजेस कब होते, किंग का वेक्टर में अगर हमने बहुत ही बिगर वैल्यूज ऐड कर दी तो क्या होता, वो यहां तक आ गया तो क्या होगा, मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एकदम माइनर चेंजेस हो रहे हैं, उतने ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए, स्लाइट चेंजेस हो रहे, जिससे क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग तो उतना ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हर पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, किंग की यूनिक वैल्यू ले पाते हैं, उतने ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं कि आगे कंप्लीटली चेंज हो जाए। सो अगर ये 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल है, सो 2 डायमेंशनल में कितनी वैल्यूज है हमारी, सो कंसिडर 2 डायमेंशनल वेक्टर है, यहाँ पे लेते हैं हम, ये 2 डायमेंशनल में हमने प्लॉट किया था। सो ये कुछ 3 है, ये कुछ 4 है, तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, मे बी ये चेंज हो सकता है। अगर हमने जस्ट यहाँ पे क्या लिखा, 3 की जगह 3 एंड 5 लिखा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कंसिडर 3 एंड 4 था, हमने क्या किया, जस्ट एक वैल्यू चेंज की तो क्या हो रहा है, इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ओनली 2 डायमेंशनल है। लेकिन अगर 12 डायमेंशन में हम इसे प्लॉट करेंगे तो क्या होता है, वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज करने से उतना ज्यादा चेंज नहीं आता। जितना बड़ा डायमेंशन होगा उतना क्या होता है, वैल्यूज में चेंज करने से वेक्टर में स्लाइटली मूव ऑन करेगा, उतना ज्यादा मूव ऑन नहीं करता कि कंप्लीटली मीनिंग ही चेंज हो जाए। क्या किया है, साइन एंड कोसाइन वेव का यूज किया है। साइन एंड कोसाइन वेव की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इन अ रेंज ऑफ -1 to 1, उससे 1 से बिगर नहीं होगी, -1 से लेस नहीं होगी। तो क्या होता है, उसमें उतने ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे, जस्ट स्लाइटली चेंजेस होंगे। सर तो 5 और 2 वेव्स लेंगे तो सारी की सारी साइन होगी या फिर सिर्फ कोसाइन होगी या मिक्स होगा? नो मिक्स होगा। तो हमने ये देखा था ना, तो हमें क्या करना है, इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स मीन्स क्या होगा, 512 जो डायमेंशन आने वाला है उसमें अगर फर्स्ट पोजीशन पे है, 512 जो आपका और डायमेंशन का वेक्टर है उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे जब होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिया है, जहां पे ऑड इंडेक्स होगा वहां पे कॉस वेव यूज करेंगे, जहां पे इवन इंडेक्स है वहां पे हम क्या करेंगे, साइन वेव यूज करेंगे। ओके। सो 10th पोजीशन मींस 10th इंडेक्स होगा तो साइन वेव यूज होगी, 9 होगा तो कॉस वेव यूज होगी। तो मिक्स ऑफ दो बोथ वेव लेंगे, जिससे क्या होता है, कंप्लीटली यूनिक वेक्टर, एंड इनकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा मींस ड्रास्टिकली चेंज नहीं करेगी। फॉर्मूला सिंपली क्या करता है, हर एक पोजीशन के हर एक इंडेक्स के लिए मींस वी के 512 इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं, राइट हमें, तो वी के 512 के लिए ये फॉर्मूला आएगा, सेम आर के 512 के लिए ये फॉर्मूला आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस फॉर्मूला के थ्रू भी करके देखते हैं एक बार। जस्ट वो इमेज में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करके किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंसिडर आपके पास वी है, वी के लिए आपको कितने इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं, एक वेक्टर कैलकुलेट करना है, उसमें फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, ऐसे 512 तक कैलकुलेट करना है। आर के लिए भी क्या करना है, वेक्टर कैलकुलेट करना है जिसमें 512 वैल्यूज होगी। तो 512 वैल्यूज में इंडेक्स क्या होगा, ये जो ऊपर की वैल्यू है ये क्या है, इंडेक्स है। ये फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, मींस 0th लीजिए, 0th या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से 512 तक क्या क्या वैल्यू होगी। ये इंडेक्स समझ में आ रहा है। तो ये ऊपर की जो वैल्यू है ये क्या है, आई है। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक जो वेक्टर होगा, वेक्टर में यहाँ पे 1 होगा, 1 मीन्स क्या, ये इंडेक्स है। सो वेक्टर का इंडेक्स स्टैंड कर रहा है आई।
तो आई एंड पीओएस में सबसे पहले डिफरेंस समझ में आ रहा है। पीओएस मीन्स क्या एंड आई मीन्स क्या? पीओएस क्या स्टैंड कर रहा है? एक पोजीशन होगा Position. वर्ड सीक्वेंस का, और एक जो आई है वो वर्ड के अंदर वो जो वेक्टर का नंबर है वो। में सीक्वेंस में हुई की क्या पोजीशन है? पीओएस क्या होगी? 1 POSV के लिए तो इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम। मैं ये चेक करता हूँ लैपटॉप में प्रॉब्लम है या इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अटेंशन और क्रॉस अटेंशन थोड़ा सा बताइए ना विथ एग्जांपल। सो कंसिडर हमें क्या करना है, जो आपका एप्पल वर्ड है, राइट? एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी। इसमें आपको क्या करना है, एप्पल वर्ड का मीनिंग कैलकुलेट करना है। तो आप कौन सा अटेंशन यूज करेंगे? जो एप्पल का मीनिंग आ रहा है वो उसके साथ उसी सेम सीक्वेंस में जो वर्ड आ रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड रह रहा है, या फिर उसका हिंदी जो क्या है ट्रांसलेशन है उसके ऊपर डिपेंड होने वाला है, जो सेम सीक्वेंस में आने वाले, राइट? उसके साथ फोन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेम सीक्वेंस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग मीनिंग ऑफ एप्पल। तो वहां पे कौन सा अटेंशन यूज हुआ? फिर सेल्फ अटेंशन, राइट? सो कंसिडर Yes, अभी sir. आपको क्या करना है, या एप्पल लॉन्च न्यू फोन, तो यहाँ पे फोन का आपको ट्रांसलेशन देखना है। तो फोन का अगर ट्रांसलेशन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोन का हिंदी का जो सीक्वेंस है उसमें फोन से रिलेटेड कौन सा वर्ड है ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिलेटेड हिंदी वर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोन का अटेंशन जो दूसरा सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस कौन सा है, हिंदी का सीक्वेंस, उसके साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस अटेंशन यूज करते हैं। सो अगर अटेंशन सेम सीक्वेंस के ऊपर यूज कर रहे हैं तो बेसिकली सेम सीक्वेंस के ऊपर क्यों करते हैं, उसका सेम लैंग्वेज में मीनिंग क्या है, एप्पल वो कंपनी है या फोन है, इसके लिए हमने क्या किया, सेल्फ अटेंशन यूज किया। एंड जब हम फोन का या फिर किसी और वर्ड का दूसरे लैंग्वेज में मीनिंग क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, क्रॉस अटेंशन। पोजिशनल एनकोडिंग थी, इसको रिवाइज कर लेते हैं। एंड बाकी का जो भी आगे का पार्ट होने वाला है जैसे मास्क अटेंशन हो गया, एंड एक और थिंग होती है केवी कैशे नाम की। केवी कैशे क्या होता है एंड वो डिकोडिंग के ऊपर कैसे इंपैक्ट करता है, डिफरेंट मॉडल, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं कल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन? इस पोजिशनल एनकोडिंग में कोई क्वेश्चन है? इवन कल हम रिपीट करने ही वाले हैं। तो ठीक है, ओके देन वी विल स्टॉप हियर।